ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਤੂਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1945 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ, 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
में
आई अचरज शोभा कारज आया रासी। नानक गुरपुरा भेटियो सगले दुख विनासी। वड्डी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासी। नानक गुरपुरा भेटियो सगले दुख विनासी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहब साहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दानी साहो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला नागा। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीना। कहो नानक हर भज मना जीवित जल को मीना। बेखियान सो काहि रचियो निमक न हुए उदास। कहो नानक भज हर मना प्रेम जन की पास। तरना पोयो ही गयो दियो जगातन जीत। कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत। मृत भयो सूझै नहीं काल पहुँचियो आन। कहो नानक नर पावली क्यों ना भजै भगवान। धन दारा संपत सगल जिन्हें अपनी करमान। इनमें कस संगी नहीं नानक साची जान। पद उदाहरण पैर हरन हर अनाथ की नाथ। कहो नानक ते जानिए सदा बस तुम साथ। तन तन जीत को दियो दासो हो न कीन। कहो नानक नर बावली अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर्जी की दाम। कहो नानक सुंदरी मना समृत का ही नाम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोई। कहो नानक सुंदरी मना धी सिमरत गत होई। जे सिमरत गत पाई है ती बजरी तै बीत। कहो नानक सुंदरी मना औद कटत है दीत। पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान। जीते उपजो नानक दीनता ही मेहमान। कट कट में हर जू बसै संतन कहो पुकार। कहो नानक ते भज मना भौवित उतरै पार। सुख दुख जी परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुंदरी मना सो मूर्त भगवान। पुस्त तन तिया राही जी कंचन लो समान। कहो नानक सुंदरी मना मुक्तता ही तै जान। हर सुख जाके नहीं बैरी मीत समान। कहो नानक सुंदरी मना मुक्तता ही तै जान। पैका भूगो दीत नह नह पै मानत आन। कहो नानक सुंदरी मना ज्ञानी ताहे बखान। जी विख्या सक जीत दी भीख बैराग। कहो नानक सुंदरी मना तीन माथै भाग। जे माया ममता तदी शक्ति परो उदास। कहो नानक सुंदरी मना दीकट ब्रह्म निवास। जे प्राणी हूँ मैं तदी करता राम पशान। कहो नानक बहुमुक्त नर ए मन साची मान। पैरासन दुर्मत हरन कर्म हर को नाम।
जो सुपनार बिकना ऐसी जग को जान, इनमें कह साचु नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया करनी प्राणी दौलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जी जीत। जैसी जलती बुध बुदा भजन समीत, जग रचना तैसी रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चितई मद माया के अंत, कहो नानक बिन हर भजन बरतताई जम फंद। जो सुख पहुँचा है सदा सन्न राम की लीह, कहो नानक सुन रीवाना दुर्लभ मार्ग दीह। माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सदान। जो प्राणी विस दिन बजै रूप राम ती जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया में पद रहियो बिसरियो गुप्त नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने राम। प्राणी राम न चितई मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन बरतताई जम फंद। सुख में बहु संगी भई दुख में संग न कोई, कहो नानक हर भजन मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म भर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भजन मना जग पै पावै वास। यतन बहुत मैं कर रहियो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत सो नानक पदियो राख लियो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान। करो तो सोना कियो पर रूप के फंद, नानक समयो राम गयो अब क्यों रूप दयंद। कष्ट पीराग में लावे पांचू संग बरंगन लावे, सूरठ कोट मदारी धुनी पुन लावे आशा गुन बुद्धि। उच्च सुसु गुन कीनी मीराग सो बाजो चीनी। बैरा धर गज तल की धारा जबरी धर नट्यो जब तारा, पुन गावे शंकर औ श्यामा मीरा पुत्रन की नामा। कष्ट राग गुण गाई संग रागनी तीस, सब पुत्र धन की 18 रस 20। कष्ट राग गुण गाई संग रागनी तीस, सब पुत्र रागन की 18 10 20। राम कली सात एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जग दाता सोई भगत वश तिहु लोई जियो, गुर शब्द समावी अवर न जाने कोई जियो। अवरु न जाने शब्द गुर के ईक नाम त्यागी, प्रसाद नाम गुरु अंगद परम पद भी पावी। आया कारा जगन बारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल तोर ठाकुर भगत ती हर पाया। हर पाना गुर पाया गुर जावे हर प्रभु पास जियो, सतगुरु करी हर पै बीनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज रखो हर जन है कीरी हर देवो नाम धनंजनो, अंत जगदया हुई बीती जब दूध का निकंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभु सुनी अरदास जी,
ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਰਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੈ ਮਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਧਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ ਨਿਵਾਣ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੀ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਗਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੀ। ਹਰ ਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸਜਾਨ ਜੀਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਬੰਨ ਲਈ ਰਜਾਈ ਜੀਓ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਸਭ ਭਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀੜੀ ਜਿੱਥੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਰ ਵਕੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਵਾਇਆ। ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੀਕ ਰਜਾਈ ਜੀਓ। ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤ ਹੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੀਕ ਰਜਾਈ ਜੀਓ। ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤ ਹੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਗੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ ਜਾਗੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਆਏ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ
सच बन रहा बिनवंत नानक पुर चरण लगे पवन गुरु पानी पिता दिवस रात कोय दाई लाया चंगियाइयां करनी आपो अपनी जिनी नाम नानक देव निर्जल केती सुनी ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਲਿਤੇ ਆਵੇ ਕਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਚਰਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬੈਠਵੰਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਰਹਿ ਦਾਨ ਸਭ ਦਾਨ ਪੁਰਸਾ ਦਾਨ ਵੇਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਰਸਮ ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹੀਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਟਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਮਾਤੂ ਦੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਮਾਣੇ ਦੀ ਮਾਣੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਉਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਾਜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਇਆਲਤਾ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਦਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਇਆਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੰਡ ਸੁਣ ਦਾ ਬਾਲ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਅਗੁਣਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਰਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਗਜਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਕਾ ਥਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਨਿਵਿਸ਼ਟਾਏ ਕਰੀ ਬਾਕਸਲ ਸੋਜ ਵਿਦਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰਾਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤ ਤੋਂ ਸੁਣਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਚਲਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਉਪਜਿ ਸੋ ਬਿਨ ਸੁਹਾਇ ਪਰਵਾਦਿਕ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰਮਨ ਗਏ ਨੇ ਛਾੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਰ ਦੁਖਿਨ ਕੋ ਤਾਵਤ ਕਿਹ ਬਦਰ ਕੋ ਤਾਹੇ ਰਹਾਉ ਏਕ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਮਤ ਸੁਨ ਨਿਤ ਨ ਕੀਏ ਬਸਾਵੈ ਪਰ ਧਨ ਪਰਦਾਰਾ ਸਿਮਰਤਿਓ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਰਾਵੈ ਤਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇ ਬਾਬਰੋ ਸੂਜਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਬਸਤ ਨਰੰਜਨ ਤਾਰ ਕੋ ਮਨ ਨ ਜਾਣਾ
काटी नमकी फांसी। जब ही सब साथ की आयो दुर्गत सगल विनाशी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी नमकी फांसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार सदका बिछड़ी हुई आत्मा सरदार संता सिंह चिश्ती अंतिम अरदास के अंदर शामिल होने दे लई परिवार के नाल सटे रखने वाले दूरों नेड़ियों चल करके गुरु दरबार विच हाजरियां कर रहे हैं। सतगुरां दी अलाही बाणी का कीर्तन श्रवण कीता भोग दे श्लोक श्रवण कीते ने अरदास बेनती जोड़ी की है। सतगुरां ने हुक्मनामा साहिब की बख्शिश की है। हुक्मनामा साहिब के अंदर गुरु साहिब ने मनुख को जिंदगी की अटल सच्चाई का ज्ञान करदे होया मानो संबोधन को करके दसना किया कि मनुख हर एक चीज को अपने काबू के अंदर कर सकता है कि आप मेरे काबू आ जाए वो मेरे काबू आ जाए। पर कभी इस गल का ख्याल नहीं किया कि मेरा मन मेरा कितना काबू च मैं अपने मन के कितना काबू पा लिया कि मैं अपने मन को कंट्रोल में रख रहा कि नहीं रख रहा। मेरा मन मेरी आज्ञा के विच चल रहा कि नहीं चल रहा। इस करके धन सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज सोरठ राग के अंदर जो हुक्मनामा साहिब की बख्शिश कर रहे हैं आरंभ में आखते ने माई मन में हो बस कि ये मेरी माई जेड़ा मेरा मन है मेरे काबू में नहीं है मेरे बस में नहीं है कि मैं चाहना जरूर ना कि भी सब कुछ मेरे काबू में होवे पर मेरा तो मन ही मेरे काबू में नहीं। थोड़ा सोचा जाए ना कि मेरे पुत्र थी मेरे बस में मेरे सके संबंधी मेरी आज्ञा दे हर एक को चाहता है पर कभी ख्याल किया कि मैं अपने मन पे ना काबू तो गुरु साहब ने नैस बादशाह ये भी कई बार होता है कि भी हाँ सारा दिन पता नहीं कितने रहते हैं या कुछ रात में कितने रहते हैं पर मेरा माना दिन रात कि ये नहीं कि जब दिन या रात नहीं दोनों टाइम ही दिन रात देखिए ना होता विषयों के वाल दौड़ता है धाम दौड़ता है किसी भी तरह होता है किस विधि के नाल रोकिया जाए किस विधि के नाल काबू किया जाए मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कंट्रोल कितना करा कि ये मेरे काबू में नहीं कंट्रोल के अंदर नहीं है। आगे रहाओ तो बाद सतगुरु कहने वेद पुराण सिमरत के बादशाह जैसे अपनी जिंदगी के अंदर ज्ञान को धारण करने के लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ किताबां पढ़ना ਵੱਖ-ਵੱਖ ग्रंथों का अध्ययन करना ਵੱਖ-ਵੱਖ मतां की सिक्ख्यावां अपने जीवन के विच साझियां करते हैं। ते गुरु साहब कहते हैं वेदां की गल कर लो पुराणां की कर लो सिमरतियां की कर लो कि हर एक धार्मिक ग्रंथ के अंदर सिक्ख्या पई है सिद्धांत पे है। हर एक धार्मिक ग्रंथ सानू जिंदगी जीवन की जांच सिखा रहा निमखना किए प्रसाद है पर कहते
मैं निम्फ दिंदा भी उनको अपने पल्ले नहीं बन लिया, क्योंकि बाणी तो असं पढ़ी जाते हैं पर उनको कदे अपनी जिंदगी के उत्ते काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया कि भी ये जो गुरु साहब सिद्धांत बख्शते ने कि मेरा मन उस सिद्धांत से चल रहा। जो गुरु साहब जिंदगी दे विच मैनू कमाउण दे लई आखदे ने, मेरे मन ने कमाया कि नहीं कमाया, मेरी जिंदगी के अंदर सदाचारता आई कि नहीं आई। मैं बाणी का बड़ी पढ़ता कि मैं अतिक सचियार बनया कि नहीं बनया, मैं धर्मी का बड़ा कमाऊना, मेरे अंदर दया आई कि नहीं आई, मैं अपने आप दे विच बड़ा पुजारी होना, मेरे विच निमरता है, मेरे अंदर सहनशीलता है, मेरे अंदर संतोष है, मेरे अंदर सबर है, कि मेरे विच चिन्ह आए कि नहीं आए। कि ग्रंथां नूं बड़ा पढ़िया, हर एक विद्या का मैं ज्ञान हासिल किया, पर निम्फ जिन्ना अपने हिरदे अंदर नहीं डालिया, उन्हां सिक्ख्यावां नूं अपने जीवन विच नहीं कमाया। दूसरे को आखदा रहा भाई निमरता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, कि मेरे अंदर सहनशीलता है। दूसरे को मैं आखदा कि हिम्मत रखो, मेरे में हिम्मत है। दूसरे को मैं आखदा भी दयावान होना चाहिए, कि मैं किसी की दया की, मैं किसी लोड़वंद की सहायता की। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी जो बोला पढ़ी है तो गुरु साहब सब तो पहला सानू सिद्धांत सिखाते थे कि धर्म तो पहला मनुष्य के अंदर दया होती है। धर्मी ऐसे सारे हैं पर दया के नहीं का ये सब इस करके गुरु साहब कहते थे कि अनेक मतां नूं पढ़िया, वेदां दी गल, पुराणां दी गल, सिमरतियां दी सब कुछ सुनिया, सब कुछ पढ़िया, पर एक निम्फ जिन्ना भी हिरदे विच नहीं मेरे मन में बसाया, उन्हां ते चलण दा यतन नहीं कीता, उस रस्ते दे उत्ते ब्याह ही नहीं, पर ब्याह किथे पर धन पर दारा सिं रचियो व्यर्था जन शराब। दौड़ उसे धन दे अंदर लगी रही, दौड़ उसे परिवार दे अंदर लगी रही कि इनू ही रचदा जावां, इनू ही बढ़ाउंदा जावां। क्योंकि जिस वेले घर दे अंदर बच्चा पैदा होता है, उस दिन तो ही असीं उहनूं पढ़ाउण दे लई, चंगी नौकरी ते लाउण दे लई, चार पैसे कमाउण दे लई सोची जांदे। ते दूसरा पक्ष जदों चंगा पढ़ लिख जावे फिर असीं सोचदे हां चंगा परिवार बन जावे, कि इहदा विवाह हो जावे, इहदे घर विच पुत्तर आ जावे, क्योंकि लालसा अगे दी विधदी जांदी है, ये कदे खत्म नहीं हुंदी। तुसीं देखो कई बार लोग अरदास करता है कि घर विच पुत्तर हो जावे, जदों पुत्तर हो जाता फिर कहंदे कि भी हुणे आग्याकारी हो जावे, लंबी उम्र हो जावे, अरदास करते फिर समा पैंदा, फिर कहने कि विद्या का दान मिल जाए, फिर समा पैंदा इहदा विवाह हो जाए, फिर कहने भी इहदे घर भी पुत्र हो जाए। मतलब कि लालसा मुक्ति नहीं, खत्म नहीं हुई, कि अगे दे के चलते रहे। इस करके गुरु साहब कहते ने पराए धन पराए परिवारां दे लई रचियो व्यर्था जन्म छरावै, मनुख ने अपना सारा जन्म व्यर्था ही एक लालसा दे अंदर लग करके अपनी जिंदगी दे जिहड़े कीमती अनमोल श्वास है ना, वो श्वास व्यर्थ कर ले। मद माया है भयो बाबरो। फिर जब चार पैसे आ जाण कहंदे ये जिहड़ी माया है, ये जिहड़ी संपत्ति है, मद इहदे विच मस्त हो गया। जिवें हुंदा ना शराब पी के लोग मस्त हो गए, असीं कहंदे भी नालियां च भी पिया, गलियां च भी पिया, आख दिंदे मद माया का भयो बाबरो बाबरो झल्ला पिया करदा मनुख। असीं देखदे हां जिसदे कोल चार पैसे आ जाण वो बंदा झल्ला हो जांदा है, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੂਝਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ कि भी एक जड़ा धन है, एक जी संपत्ति है जो परमात्मा ने दी है, शुक्र के साथ करना, इसका ख्याल नहीं आ रहा कट ही भीतर वस्त निरंजन कि जो संपत्तियां देने वाला, जो धन देने वाला, जो पुत्र धियां नूं बख्शण वाला कटा कटा दे अंदर काल तो रहत परमात्मा वसदा है, ताको मर्म न जाना, उसका मर्म नहीं जानते। किसी लोड़वंद को देख के कभी ख्याल नहीं आया कि रब ने मैनू धन दिता ते आ लोड़वंद मेरे पास भेजी है ते रब विधि बना रहा है ते मैं इसकी सहायता करना, ये भेद नहीं किसी ने समझ आ रहा। जब मैं कोई चंगे समाज के खेतर में ला देवां, ये भेद नहीं समझ आया कि मेरी ड्यूटी लग गई। इस करके कहते गुरु साहब कहते कि ऐसी माया के मस्ते चढ़ी, ज्ञान की समझ नहीं आई ते उस भेद तो सखना हो गया जो भेद सानू धन सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज 550 साल समझा के अखीर ते आके सतगुरु कहते ने जाके भी साधु साध की आयो, जाके कहते जदों शरण ग्रहण की साधु की जिन्हें साधना की, साधना वाले सतपुरुष की संगत विच आया, शरण विच आया, दुर्मत सागर विनाशी, कहते कि खोटी मत सी, मेरी खोटी बुद्धि सी ना, ओदा नाश हो गया। तब नानक चेत्यो चिंता, फिर कहते उस साधु ने चेते करवाया चिंतावां नूं कटण वाला। अकाल पुरख परमात्मा का चेता करवाया, साधु ने दस्या भाई रब दे नाम नाल जुड़ो, साधु ने दस्या भाई सेवा सिमरन कर, ते जदों सेवा सिमरन कीता रब दे नाम नाल जुड़िया, काटी चमकी फांसी, कहने जमा दी फाही नूं कट लिया। इस करके गुरु साहब सानू दृढ़ करवाउंदे ने भलिया दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ। दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੈ। जिस वेले तेरा मन समझ गया, समझ सारा जहान समझ गया। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी ने दृढ़ करवाया मन जीत जग जीत, मन को जित लिया तो जग को जित लिया, मन उत्ते काबू पा लिया तो जग उत्ते काबू पा लिया। हुण असीं कई बार सोचते हैं ना कि आ हालात ने देश के, समाज के, घर के, परिवार के, जिस दिन असीं अपने आप उत्ते काबू पा लवांगे परिवार ते काबू, ते जदों परिवार ते काबू पै गया ते समाज ते पै जाएगा। इस करके गुरु साहब सानू दृढ़ करवाउंदे ने भलिया अपने मन नूं कंट्रोल अंदर रखे, अपने मन नूं सचियारता दे वल, भलाई दे वल ले करके चलना कर, जिहदे नाल तेरी जिंदगी दे सवास सफल हो जाण, जिस दे नाल तेरा इस दुनिया ते आउणा सफल हो जावे। ਆਪਾਂ सब भावें संता सिंह की अरदास शामिल होए हैं, पर गुरु साहब सानू दृढ़ करवाउंदे ने भलिया कि जिद्दां संता सिंह शरीर करके साडे विचों चलिया गया ते एक ना एक दिन असीं भी चले जाना। ये गल पल्ले बन के ना रखी कि जो चले गए ते मैं बैठा, कि मैं भी चलिया जाना, कि जेड़े श्वास रहते थे किते अजाई ना चले जाण, जिन्ने रह गए उन्हां नूं संभालिया जावे, जिन्ने रह गए उन्हां दे अंदर कदे पश्चाताप ना होवे। ये जिहड़े श्वास ने उस रब दी शुक्रगुजारता दे अंदर लग जाण, ये जिहड़े श्वास ने उस परमात्मा दी इबादत दे अंदर लग जाण। क्योंकि सियाणा दा कथन है उमर सोई विच लेखे दे जो याद साईं विच होवे, ओही समा लेखे दे अंदर है जो उस परमात्मा की याद अंदर उस परमात्मा की इबादत के विच लग जाओ। इस करके गुरु साहब कृपा कर बिछड़ी हुई आत्मा का कल्याण होवे ते साडे उत्ते मेहर दया कर, असीं अपने रहते श्वास उस परमात्मा के नाम नाल जुड़ करके सफल करिए जी। भुल चुक दी खेमा
समाप्ति करिए ते बाद विच जो स्टेज की कार्रवाई है वो सिंह चलाउणगे। जापे सरन साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जन की फांसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह सारे को पता है कि अध्यात्म एक बहुत ही पवित्र आत्मा की अंतिम अरदास के शामिल हुए हैं। मैनू परिवार वालों हुक्म होया कि मैं उस पवित्र आत्मा की याद के चार शब्द बोलना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी मुताबिक जो आया सो चल सी सब कोई आई बार गया ते हुक्म मुताबिक साडे बहुत ही सत्कारयोग वीर संता सिंह जी उस दिन हुए दुनिया के विचों चलाना कर गए। मैनू उन्होंने नाल काफी वरतन का मौका मिला क्योंकि वो मेरे नालों 10 साल उम्र के वड्डे सी। जिस तरह आप सब जानते हैं कि मौत हर एक को आनी है, इसका कारण कोई भी हो सकता है, चाहे बीमारी, एक्सीडेंट या अपने श्वासा की कुंजी पूरी हो जाना। जदों भी कोई प्राणी इस दुनिया को चला जाता है तो असी श्रद्धांजलि के रूप में वो गुणा को याद करते हैं ताकि जिहड़ियां दुनियावी रूहां साडे कोल बैठियां वो भी उन्होंने गुणा का वर्णन करके उन्होंने चलने की कोशिश करन। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे मुताबिक देखा है कि बंदा जो भी काम करता वो अपने सुभाव के मुताबिक करता है। जे कोई शांत सुभाव वाली रूह होती है वो सानू संत बन जाती है। जे कोई गुस्से वाला लड़ाकू बंदा होता है वो चोर डाकू या गैंगस्टर बन जाता है। इस तरह जिसकी मन के लालच बसिया हो वो उन्हों के किते बना लेता है क्योंकि समाज के बड़े किते ऐसे है जिन्होंने अपने आप ही लालच पैदा हो जाता है। पर अगर असीं जी रूह की गल कर रहे हैं वो सरदार संता सिंह जी बारे करनी है। सरदार संता सिंह जी का सुभाव बहुत ही शांत सुभाव से। मैं अपनी जिंदगी के कदे उन्होंने किसी के नाल गुस्से होता नहीं देखा। वैसे तो गल यह है कि जब कोई भी प्राणी चला जाता आप उसके बारे चंगा ही कहने हैं, पर 100% सच्चाई है कि संता सिंह कभी किसी के नाल लड़े झगड़े नहीं, किसी नाल गुस्से नहीं हुए। सगों उन्होंने कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरह जे कोई दो वीर उच्चा नीवा बोलते हैं तो उन्होंने टकाउण की कोशिश करते हैं। सेवा करनी भी इन्हों की सुभाव में शामिल सी। बहुत जगह से इन्होंने सेवा की। एक बार धलोटी वाली सड़क बन रही थी, उतों तुरे आने ने पूछा कि तुहाडे कोल पीण वास्ते पानी है? वो कहते भी नहीं, सानू पीण वाले पानी की बहुत मुश्किल है। इन्होंने घरों आके टैंकी भरी, गिलास वगैरह लिजा के उत्थे उन्होंने पानी दिया, चाह बनवा के ले करो। ये देखते थे कि जिथे भी कितने लोड़ है उत्थे अगे होकर काम करते। इन्हों की आप देखा जाए कोई पढ़ाई ज्यादा ना होने के बावजूद भी ये अपने पार्टी में एक आगू का रोल निभाते। कोई भी काम होना इन्हों ने गल्लां जी दे के वो काम निपट जाने की कोशिश कर। हुण कुदरती समा भिड़ता इन्होंने मैनू कह के कई बार कहा कि साडी गली के इंटरसॉफ्ट है तो असीं शुरू करता काम। इन्होंने बड़ा साथ दिता, सारे घर कह के मिट्टी पवाई तो असीं इंटरलॉक लानी शुरू करती। पर परमात्मा को कुछ होर मंजूर सी, ये अपने शुरू किए हुए काम को देख नहीं सके। सानू इस गल का बहुत दुख है। पर इस समय ने एक इन्हों की याद साडे मनां दे विच वसा दी
संता सिंह की याद को पक्के तौर पर करिए। असीं अज सड़क के उत्ते जिहड़ी गली बन रही है उत्थे एक पत्थर ला के संता सिंह स्ट्रीट का नाम रखा। इस करके ये साडे नाल हमेशा जुड़े रहेंगे। जिहड़े भी वार्ड वाले लंघणगे उन्हां दे मनां दे विच इन्हां दी याद बनी रहूगी कि ये संता सिंह जी ने गली बनवाई थी। मेरी होर भी कोशिश है क्योंकि शहरों के गलियां के नाम होंगे हैं, पिंडों के गलियां के नाम नहीं होंगे। जब कोई उपरा वाला पिंड आता है वो गली लभण के मुश्किल आती है। मैं गुआड़ा को सुझाव लैके सारिया गलियां के असीं नाम रखांगे, उन्होंने प्लेटां पत्थर लवावांगे। ये थोड़ा जिहा एड्रैस लभना सौखा हो जाता है। तो ये गल भी जाते जाते संता सिंह जी सानूं सिखा गए। मैं परमात्मा का तो उन्होंने धन्यवाद करना कि जिन्होंने सानूं इन्नी चंगी सोच दी। एक मैं गल पिंड वासी बहुत सारे व्यक्ति दसनी चाहना है कि पंचायत के हक के नहीं आऊगा कि मिट्टी गलियां या सड़कों के पंचायत पावे, क्योंकि सड़क पर सरकार वालों एक कानून है जी मिट्टी आ वो पिंड वासियों को खुद पानी पैंदी है। इन्हों के परिवार ने कहा कि इस गली के सारी मिट्टी असीं पवावांगे। ये भी एक सेवा जी आप करते थे वो भी अपने परिवार को दे के गए। परिवार के इन्हों के 2-3 बेटे एक बेटी है और परिवार को भी इन्होंने बड़ा सनोना सेट किया। सारे को बड़ा बेटा जगतार सिंह बड़ा महंगा बिजनेस है मोगे उन्होंने जगह नाम है। उस तो छोटे सुखदेव सिंह ये खेती बाड़ी करते हैं, नाल व्यापार करते हैं। तो सब तो छोटे इंद्रजीत सिंह जिहड़े कि दुकानदारी करते। इन्होंने अपने परिवार की जी आर्थिक स्थिति सी उन्होंने आप मजबूत रखा तो अगे बच्चों भी उस लाइन के उत्ते तोड़िया कि इन्होंने किसी किस्म की तकलीफ ना आए। सारे बच्चे जो वैल सैटल है। एक इन्हों की बेटी निर्मलजीत कौर जी कि सूस पिंड विआही थी, अजकल उन्होंने गोगियां जायज है, वो भी बहुत चंगे घरे बेटी विआही हुई है। औलाद वालों पूरी तरह सुखी ते संतुष्ट। इन्हों कदे भी किसी गल की कमी नहीं सी आई। पैसे भेजने के मामले में भी मैं इन्हों के बारे देखता रहा कि आर्थिक पक्षों बहुत सौखे रहे हैं। वो सिर्फ अपन नीतियां करके क्योंकि गलत काम नहीं किए, नशे नहीं करते, परिवार को समझा के आगे रखे, परिवार को भी सचेते ढंग के नाल तोड़ना एक सचेते आगू की निशानी होती है। असीं जिन्ने भी साथी साडे अंगसार रिश्तेदार भैन भरा अज की इस शोक सभा के परिवार का दुख साझा करने वाले है। मैं परिवार वालों सारे ही आए हुए वीरां भैनां रिश्तेदार सगे संबंधियों का धन्यवाद करना है जिन्होंने दुख की घड़ी के आके परिवार के नाल दुख साझा किया। एक संता सिंह का बड़ा प्यार सी। ये ग्राउंड के जाके बैठे सी शाम को हर रोज सुबह गुरुद्वारे आना, बाबा जी को कथा सुननी, कथा सुन के ग्राउंड चले जाना, शाम को फिर 4 बजे जाके ग्राउंड में बहना। जिथे भी पता जाता उत्थे अंग संबंधी बन जाते हैं। बड़ा इन्होंने उत्थे राउंड कराने बैठ के वो जो साथी इन्हों के ग्राउंड वाले है उन्होंने बड़ा दुख मनाया है। उन्होंने अपना शोक संदेश मैनू लेके भेजा कि साडे वालों साडे वीर की याद के ये शोक संदेश जरूर पढ़ियो। उन्होंने लिखा असीं सारे स्वर्गवासी संता सिंह जी के साथी संता सिंह जी को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। संता सिंह जी बहुत ही नेक आदमी सी। उसने कदे भी किसी को उच्चा नहीं बोलिया। बहुत चंगे सुभाव के इंसान थे। सानूं उहदे घरे जाण दा बहुत ही दुख होया है। असीं उसनूं हर रोज याद करते रहांगे। साडा एक साथी साडे तो सदा लई विछड़ के चला गया। उसकी याद सानूं जिंदगी में कदे भी नहीं भुलेगी। संता सिंह काफी देर तो हर रोज साडे नाल गुरुद्वारा साहब गुरु के दर्शन करने जाता सी। असीं परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि जिस तरह परमात्मा ने उसनूं सौखी मौत दी है इसी तरह परमात्मा संता सिंह नूं स्वर्गां दे विच थां बख्शे अते भैड़ियां जुंडां तों बचावे। परमात्मा सारिआं नूं भाणा मनण दा बल बख्शे।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ